A very warm welcome to all of you. This is the second video of the series, and this is an initiative of Law Prep Tutorial to reach out to all those people who are having problems in critical reasoning. और हमारे अपने बच्चे भी कुछ ज़्यादा परेशान थे critical reasoning में, especially of those passages which were philosophical. So much awaited video coming your way from LPT. Now today's video is all about analyzing philosophical passages. देखिए, I know that in your exam options are going to get formulated on the basis of the passage, etc., etc. But as a mentor of critical reasoning, I understand that if the student is not able to understand the passage itself, I mean, how is he ever going to segregate between the correct and the incorrect option? And even the best of students, they tend to get confused as far as critical reasoning is considered. So here is a meme from Einstein, and he says that it's not that I'm so smart, it's just that I stay with my problems longer. What is the assumption of the speaker? I'll repeat it. It's not that I am so smart, it's just that I stay with my problems longer. Here the speaker has assumed that smartness can be compensated with increased time. So that means the speaker is wanting to tell you that persistence is very important, that hard work is very important. तो memes बेटा सिर्फ हंसने के लिए नहीं होती, हर चीज़ पे critical reasoning लगाई जा सकती है. और ऐसा एक और meme है कि you are so happy in life, I'm sure you don't apply critical reasoning to things. So what does it mean कि आप जिंदगी में इतने खुश हैं क्योंकि आप उसमें critical reasoning नहीं लगा रहे हैं. So क्योंकि अगर आपने critical reasoning लगाई तो आप बातों को पकड़ना शुरू कर देंगे. और शुरू करते हैं इसी के साथ हमारी सही पकड़े हैं reasoning classes. So today the passage that I have got for you, this is a passage entirely on philosophy. और जैसा मेरे आपको promise ही किया था लगभग कि मैं आपको काफ़ी length के passages कराऊंगी, तो आज के लिए क्योंकि हम बिल्कुल ही राइट फ्रॉम द स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं कि कैसे क्रिटिकल रीजनिंग को पकड़ा जाए, कैसे बात को पकड़ा जाए. सो इस वजह से मैंने इस पैसेज को, जो कि मेरे ख्याल से 750 वर्ड्स थे, उनको मैंने 3 छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है. और ये टेक्निक बहुत कारगर टेक्निक है. बहुत अच्छे जो है सीआर लगाने वाले लोग एक बड़े पैसेज को करीब 6-8 लाइन के छोटे पैसेजेस में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. और मैं आपको आज सिखाऊंगी कि कैसे आप एक रीडिंग से फिलोसॉफिकल पैसेज की मेन आइडिया, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो कंक्लूजन होता है उसको निकाल सकते हैं. कैसे इन्फरेंस निकालते हैं किसी लाइन का वो भी बताएंगे, और कैसे अजम्पशन निकालते हैं किसी भी लाइन का. एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि फिलोसॉफिकल पैसेजेस जो है वो आपके फेवरेट पैसेजेस बन सकते हैं, जस्ट अगर आप इतनी सी चीज़ करें कि लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़िए. देखिए, not all of us have the same mental caliber, not all of us love English, not all of us have the same passion for critical reasoning, but we all need to get to an NLU, right? So for that we need to divide the line. Sometimes lines are very complicated in critical reasoning and you tend to lose focus. At that point of time, the one approach which is there is to divide the line in parts and then analyze कि वो क्या कह रहा है. ठीक है. So उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करते हैं एक philosophical passage. डरिएगा मत, I am there with you. So कहता है there are 2 means commonly employed to destroy the conclusion. This is the second paragraph. Let's start with the first one. So कहता है, now let me tell you कि vocabulary is a friend of critical reasoning, just like logic is a friend of critical reasoning. So मेरी आपसे सलाह ये है, even before you start watching the video, please get a pen and paper, alright? Because what I have done here, मैं चाहती थी तो पहले से लिख के ले आती, बहुत सारे लोग लिख के ले आते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मुझे तो आपको सिखाना है ना. ठीक है. तो आप एक पेन पेपर रखिए अपने पास, और जैसे मैं जो बोलती जाऊँ, जो तुम समझते जाओ, उसको लिखते जाओ. अपने आप तुमको मेन आइडिया दिखने लगेगा, अपने आप तुमको दिखने लगेगा कि ऑथर की बात का मुद्दा क्या था. ओके. सो गेट अ पेन एंड पेपर एंड देन वी गेट स्टार्टेड. ऑलराइट. So in the first line it is written that informing our notions of human nature. Informing, that means once we are fabricating, once we are thinking about the notions or the concepts of human nature, we are apt, like we are very prone, it's more appropriate to make a comparison between men and animals. That means ऑथर यहाँ तक अभी तक आपसे ये कह रहा है कि जब आप ह्यूमन नेचर को स्टडी करने चलते हैं, जब आप उसके कॉन्सेप्ट बनाने चलते हैं, तो इट इज़ क्वाइट एप्ट, इट इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट दैट यू आर गोइंग टू कंपेयर men with animals.
Why will you compare men with animals, or why does he use the word apt? वो आपको यहाँ मिलेगा. Are you following कि CR की रीडिंग किस तरह से और सब्जेक्ट्स की रीडिंग से डिफरेंट है? क्यों कहता है कि कंपैरिजन बिटवीन men and animals is apt? क्योंकि वो कह रहा है the only creatures endowed, मतलब जिनके पास एक क्वालिटी होती है with thought that fall under our senses. The only creatures से obviously इसका मतलब animals है. The only creatures who are gifted with or who have the with thought that fall under our senses. That means the author rates men at number 1, and the only creatures which fall under men in terms of senses are animals. That is why he makes this comparison between men and animals. आगे चलते हैं. Certainly this comparison is favorable to मैनकाइंड. यहाँ से एक इन्फ्रेंस निकली, ये लाइन हमारे लिए प्रेमिस का काम करेगी. यहाँ से एक छोटा व्यू पॉइंट पता चलता है ऑथर का कि जब आप मैन को और एनिमल्स को कंपेयर करोगे तो ये एरो एनिमल्स की तरफ छोटा नहीं होगा, एनिमल्स की तरफ छोटा होगा और मेन की तरफ बड़ा होगा. इसका मतलब मेन की जो अंडरस्टैंडिंग है, मेन का जो बैलेंस है, द बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड मेन कंपैरेटिवली विल शिफ्ट इन द फेवर ऑफ men. That is what he means when he says that this comparison is favorable to mankind, is in favor of mankind. On one hand, we see a creature whose thoughts are not limited by any narrow bounds. Bounds means limitations, boundaries, okay? So on one hand, we see a creature. Who is this creature? So another very pro tip of critical reasoning, that whenever you encounter a pronoun or whenever you encounter a term which you cannot designate कि अब ये आदमी की बात कर रहा है कि अब ये animals की बात कर रहा है, तो प्लीज उसके आगे वाली लाइन पढ़िए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा वो किसकी बात कर रहा है. On one hand, we see a creature whose thoughts are not limited by any boundaries, either of place or time, who carries his researches into the most distant regions. Hint मिल गए? हिज तो एनिमल के लिए ज्यादा नहीं यूज होगा, किसके लिए यूज होगा? पहले मैन के लिए यूज होगा ना हिज, ठीक है. सो हु कैरीज हिज रिसर्चेस इनटू द मोस्ट डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब. अब ये एनिमल तो नहीं करता है कि वो इंटरस्टेलर जा रहा है, मार्स पे कॉलोनी बसा रहा है. हु इज गोइंग टू डू इट? Men, of course. So this creature here refers to men. We see a creature whose thoughts are not limited by the narrow bounds either of place or time, who carries his researches into the most distant regions of the globe and beyond this globe also, to the planets and heavenly bodies, looks backwards to consider the first origin, at least the history of human race, casts his eye forward to see the influence of his actions upon posterity. Posterity will stop you. Posterity का मतलब है future generations. तो ये सारे काम 1 2 3 4 ये कौन कर रहा है? Man is doing all of this work, and this is something that animals would not do or can't do. So that's why he uses the words favorable to mankind, and the judgments which will be formed of his character 1,000 years hence. That means the power of analysis is with whom? It's with men. Is this power of analysis? Sorry, it's not animals. Power of analysis. The power of analysis, the power of analyzing your actions, what effect they will have on the generations to come, the ability to analyze ki interplanetary travel, all of that. Who is doing that? The faculty of thinking, the faculty of reasoning, and who is blessed with that endowment? It is definitely men. He is also be able to assess that what actions are going to form which kind of judgments of his in future. Hence, a creature who traces causes and effects to a great length and intricacy. Great length, that means to a high degree, right? And intricacy, that means sophistication, detailing, is found in men or animals. Where do we find the detailing? We find it in human nature. Now can you understand कि जब आप पैसेज का क्रक्स समझते हैं, जब आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, कितने आसान है फिलोसॉफिकल पैसेजेस, ठीक है. तो ग्रेट लेंथ और इंट्रिकेसी तक जाता है, एक्सट्रैक्ट्स जनरल प्रिंसिपल्स. अभी देखिए, मैंने आपसे कहा था लेक्चर की शुरुआत में कि लाइन को तोड़ के पढ़िए. अभी हम एक ही थॉट को आगे घसीटते जा रहे हैं. एक ही थॉट वो क्या है कि हाउ मेन आर सुपीरियर or are more cognitively advanced than animals.
So great length and intricacy extracts general principles from particular appearances, improves upon his discoveries, corrects his mistakes, makes his very errors profitable. अपनी गलतियों से भी प्रॉफिट निकाल सकता है आदमी. अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक बात आपको नोटिस कराते हैं यहाँ पर. ये देखिए, ऑन द अदर हैंड. अब ऑन द अदर हैंड के बाद मैंने पढ़ा भी नहीं, फिर भी मुझे पता है ऑन द अदर हैंड में किसकी बात होने वाली है. डेफिनेटली एनिमल्स. एंड आर एनिमल्स सो cognitively advanced? No. Okay, so on the other hand we are presented with a creature the very reverse of this. Now who is this creature? Animal. So he is the very reverse of this, limited in its observations and reasoning. So the power of reasoning, the power of observing is very less in animals. To a few sensible objects which surround it. Now how to explain this? To a few sensible objects which surround it. For example, now look at this analogy question. How are we going to explain these 4-5 words? Suppose there is a zebra and he is grazing on grass. So a zebra has as much reason that, okay, around me there is grass. Grass is food. I will have it if I am hungry. This is the power of reasoning of an animal. जबकि man, आप खुद ही देख रहे हैं, आदमी जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया. CR लगा रहा है भैया क्लैट के लिए, तो आप समझ सकते हैं. Without curiosity, without foresight, तो जैसे जो कंपैरिजन उसने आदमी के लिए था कि देखो वो अपने एक्शंस को अनटू पोस्टेरिटी जज करता है कि मेरी आने वाली पुश्तें हैं, मैं उनके लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. और जब एक जानवर वो क्या देखता है, उसके पास कोई फोरसाइट नहीं है, उसके पास कोई फ्यूचर की विजन नहीं है. ही इज ब्लाइंडली कंडक्टेड जस्ट बाय इंस्टिंक्ट. भूख लगी है खाना खाओ, प्यास लगी है पानी पी लो, नींद आ गई सो जाओ, थक गए हो रेस्ट कर लो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं एनिमल. एंड अटेनिंग इन अ शॉर्ट टाइम इट्स utmost perfection. How would you define the term of utmost perfection? I am telling you, if you do critical reasoning, आपके पहले नंबर बढ़ना शुरू होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर बढ़ेंगे इस तरह से पढ़ोगे तो, और फिर CR में तो डेफिनेटली बढ़ेंगे. ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रहा है उनका फिलोसॉफिकल पैसेजेस का डर तो काफ़ी हद तक जाएगा अगर वो ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो. इन अ शॉर्ट टाइम इट्स utmost perfection without beyond which it is never able to advance a single step. Can you define utmost perfection for an animal? What is the utmost perfection for an animal? Very simple. Utmost perfection is when it has reached its full potential. What is the full potential of an animal? When it has fulfilled its basic instincts. जब वो छोटे ज़ेब्रा से बड़ा बन चुका है, जब उसने अपना पूरा जीवन काल जी लिया है, वो खा पी चुका है और शिकार नहीं हुआ है, फुल परफेक्शन पे उसने अपनी लाइफ को एंड कर दिया है. Beyond which is it is never able to advance any single step. Have you ever heard of an animal who has realized its supreme consciousness? एक शेर जो enlightened है, एक शेर जो meditate कर रहा है, ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं. यही इस पैसेज का पॉइंट है. और लास्ट में मैं आपको बोर्ड क्लीन करके एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहती हूँ. लास्ट में वो अपनी बात को फिर सम अप करता है, रीआइटरेट करता है, कहता है what a wide difference is there between these creatures, and how exalted a notion must be entertained of the former in comparison with the latter. First of all, what a wide difference is there between these creatures. Very well defined that one of these creatures is man, the other being an animal. Right. And how exalted, that means to a great degree, to a high degree, to how exalted means how extolled view, how increased how much increased admiration I have or must we entertain. We here denotes humans, must they have. Of the former here denotes human again, कि humans को कितना अच्छा लगता होगा ये जानकर कि जो उनसे just second है evolution की ladder में, who just come second to them, are so backward and are so cognitively फ्यूटाइल एंड यूजलेस. ये सोच के ह्यूमंस की ईगो को कितना बड़ा बूस्ट मिलता होगा इन कंपैरिजन विद द लैटर बीइंग द एनिमल्स. आई होप दिस पैसेज इज एडिक्वेटली क्लियर. If it's clear, let's focus on something which is slightly more advanced and which is very important for your exam, and that is the main idea. अच्छा, एक बात और है. In the last video also I have taught you all that the main idea is consistent with the viewpoint of the author. So
what a wide difference is there between these creatures, and how exalted, I mean how profound is our impression of men going to be from these premises. Alright, so what is the main idea of this particular paragraph? So first of all, it is a comparison between men and animals based on number 1, cognitive abilities. इसीलिए मैंने कहा था पेन पेपर लेके आइए, ये आप भी लिखते रहिए जो जो आपको समझ में आया है. दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन एनालिटिकल स्किल्स, एंड थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट. क्योंकि उसने एक पॉइंट लिखा था प्रेमिसेस में जिसमें वो कहता है कि आदमी जज कर सकता है कि अनटू पोस्टेरिटी क्या इंप्रेशन, क्या लेगेसी, क्या सोचने के लिए छोड़ के जा रहा है. सो दिस इज द मेन आइडिया दैट देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड एनिमल्स, एंड द बिगेस्ट व्यू पॉइंट दैट वी गेट टू नो, यही मैंने आपको पकड़ने के लिए बोला था कि व्यू पॉइंट इज दैट मेन कंसिडर themselves superior to animals. And यहाँ पर it is well supported by the premises. That means we can tell you point wise कि कहाँ पर इन प्रेमिसेस ने इस थॉट को सपोर्ट किया है, दिस बीइंग द मेन आइडिया. सो कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसके लिए भी फैक्चुअल एविडेंस है, मतलब जो उसने यहाँ पर लिखा है इससे कॉग्निटिव एबिलिटीज हम समझते हैं. एनालिटिकल स्किल्स की हम अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे एरर्स हैं उनको प्रॉफिट में बदल सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट ट्रेस कर सकते हैं इंट्रिकेसी के साथ, जनरल प्रिंसिपल्स बता सकते हैं. फाइनली जजमेंट दैट वी हैव टू लीव अ लेगेसी अनटू पोस्टेरिटी, so we are able to judge and we are able to analyze the outcomes of our actions, main viewpoint being that men consider themselves superior to animals, and rightly so. Okay, what is the assumption of the author in this particular paragraph? What is the assumption? So what is the inference? Inference मैंने आपको उसी में क्लब करके बताया है, जो cognitive abilities वाला पॉइंट था, जो जजमेंट वाला पॉइंट था. एक एक चीज जो यहाँ से तुम समझते हो वो इन्फरेंस, जो प्रेमिस में लिखा है उससे तुमने समझा वो इन्फरेंस सबसे वैलिड होता है. अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द ऑथर. व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन, वेरी इम्प्लिसिट अजम्पशन ऑफ द ऑथर इन द लाइन्स. लाइन से मेरा मतलब आपके पूरे पैराग्राफ से है. सो बताओ, अजम्पशन एलपीटी के सारे बच्चे जानते हैं कि अजम्पशन जो है इट डिनोट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर, राइट? So what is that very primary assumption that the author has made all throughout the passage? First of all is the vital assumption that men, now look at the use of language जो मैं assumption के लिए कर रही हूँ, men and animals are comparable. बहुत बढ़िया एक assumption ये आपको मिला है कि men and animals are comparable. इसकी टेक्निक मैंने आपको बताई है कि assumptions कैसे चेक करते हैं. अब ये assumption यदि आपके ऑप्शंस में लिखा हो तो आप रुक के एक बार सोचोगे जरूर. यदि आपको मेन आइडिया क्लियर है तो यू विल डेफिनेटली स्टॉप एट दिस assumption. यार बात तो सही है, क्योंकि अगर ये कंपेरेबल नहीं है, या अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं या लिख दूं कि दे आर इनकम्पेरेबल, क्या आप इतनी पूरी प्रेमिसेस को बोल पाएंगे? क्या आप ये कंक्लूजन दे पाएंगे? यही तो काम होता है assumption का. Are you getting the point? अब क्या आपको समझ में आ रहा है कि बड़े पैसेजेस में, फिलोसॉफिकल पैसेज में, और जहाँ तक मेरा ये एफर्ट है मैं आपको इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड पैसेजेस में या इवन साइंस ओरिएंटेड पैसेजेस में भी दिखाऊंगी कि कैसे अजम्पशन पकड़ा जाए, कैसे कंक्लूजन पकड़ा जाए. क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि कंक्लूजन यदि आपने सही सही पकड़ा है तो इन्फ्रेंसेस विल फॉलो, एंड उससे एक स्टेप बैक जाके आप अजम्पशन तक भी पहुंच सकते हैं. तो प्राइमरी अजम्पशन ऑफ द ऑथर दैट मेन एंड एनिमल्स आर comparable. We can compare men and animals. We can analyze the natures of the two species. ठीक है? So assumptions are undefined, unstated premises which are required for your conclusion to be true.
ओके, अब मैंने एक ही पैराग्राफ के दो टुकड़े किए हुए हैं. अब हम सेकंड टुकड़े पे आते हैं और देखेंगे बहुत ही बढ़िया एनालिसिस इस सेकंड पार्ट की भी. और अगर आपकी डिमांड रही तो मैं फिलोसॉफी को कंटिन्यू भी करूंगी. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फिलोसॉफिकल पैसेजेस में बहुत दिक्कत आती है. सो आई विल कंटिन्यू giving you my insight, and if there are any comments that you want to give me or you want to reach out to me, then obviously you can leave them in the section below. Now this passage or this paragraph here, right here, is something that I have left for you, but I will give you a slight idea because ऐसे नहीं छोड़ेंगे. थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तुम मुझे नीचे लिख के बताना कि तुम्हारा मेन आइडिया, इन्फरेंस, मेन आइडिया से मेरा मतलब है कंक्लूजन, जो कि व्यू पॉइंट कंटेन करता है. अब तक तो आपको रट गया होगा कि जो कंक्लूजन होता है सीआर में, इट कंटेन्स द व्यू पॉइंट ऑफ द ऑथर. ओके, इन्फरेंस जितनी आप निकाल सके उतनी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. और अजम्पशन ऑफ द ऑथर, मैं आपको पैसेज एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा. आप मुझे ये सब करके नीचे कमेंट में छोड़िएगा और जहां तक पॉसिबल होगा मैं उसको खुद पर्सनली जवाब दूंगी. There are two means commonly employed to destroy this conclusion. Very nice. Now let's go back. We have to go back क्योंकि मैंने कहा था ये कंटिन्यूटी में था. यहाँ तक हमने कंक्लूड किया था कि वाह, कि इंसान तो जानवरों से कहीं आगे है. उसके बाद वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उठा कर ले आया दिस, जिसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा. यानी ये कंक्लूजन कि आदमी जो है वो इंसानों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है अंडरस्टैंडिंग में. तो कहता है इसको डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके हैं. अब तुम समझते चलो. पहला, दो तरीके क्या है भाई? ध्यान से पढ़ना होता है सीआर, और कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है. देखो, बाय मेकिंग एन अनफेयर कंपैरिजन, बाय मेकिंग एन अनफेयर रिप्रेजेंटेशन. ओके, there are two means commonly employed to destroy this conclusion by making an unfair representation of the case. Kiss case? By making an unfair representation, that means if you start showing animals in very good light, or you start showing humans who have behaved like animals, then can you tell me that animals are far apart, far below humans? Are you understanding? देखो, दो तरीके हैं. जब मैं बोलती हूँ men versus एनिमल्स और आपका कंक्लूजन था कि मेन आर इन्फिनिटली बेटर देन एनिमल्स, तो अब मेन के कंक्लूजन को डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके बता रहा है. या तो मैं दिखा दूं कि कुछ आदमी जो हैं वो एनिमल्स की तरह और इससे बदतर बिहेव कर चुके हैं, तो ये वीकन हो जाएगा कंक्लूजन कि मेन आर बेटर देन एनिमल्स. समझिए बात को, इट्स ऑल लॉजिक, राइट. दूसरा, मैं दिखा दूं कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत काबिलियत रखते हैं, तो वीकन हो जाएगा हमारा कंटेंशन दैट मेन आर वेरी फेयरली कॉग्निटिवली एडवांस देन एनिमल्स. तो इस तरीके से, एंड इंसिस्टिंग ओनली अपॉन द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. समझ में आ गया आपको कि बाय मेकिंग एन अनफेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केस में क्या इसने आगे बोला? एंड इंसिस्टिंग ओनली अपॉन द वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. अगर मैं ये लाइन लिखती हूँ कि देयर हैव बीन टायरेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री हु हैव बिहेव्ड in a manner which is inhuman and worse than animals, does it strengthen the author's conclusion right now or weakens it? Obviously it weakens this conclusion. ठीक है, this is what they mean when they say weaknesses of human nature. और दूसरा तरीका इन्होंने क्या बोला है? And secondly, by forming a new and secret comparison. Very nice. Now इन्होंने एक third party analysis यहाँ पे include किया है. पकड़ते चलिएगा प्लीज. एक तो तरीका भाई ये हो गया कि आप दिखा दें कि आदमी जो है उसमें बहुत कमजोरियां हैं. दूसरा तरीका ये है कि आप उनसे कंपैरिजन शुरू कर दें जो आदमियों से भी अच्छे हैं, who are symbolic of the perfect wisdom. तो ये हो गए men से नीचे एनिमल्स. तो men को वीक दिखाने के क्या तरीके हैं? या तो आप इनके इनहेरेंट नेचर में वीकनेसेस दिखा दें, ठीक है ना, या आप मेन का कंपैरिजन उनसे करने लगे जो मेन से भी अच्छे हैं. इसको हम एक्स बुलाएंगे. दोज बीइंग्स ऑफ परफेक्ट विजडम. नाउ दे कुड बी एनीबॉडी, बीइंग्स ऑफ परफेक्ट विजडम. वेरी गुड. Among the other excellencies, among the other skills of man, perfections of man, this is one
दैट यही कौन है, मैन कैन फॉर्म एन आइडिया ऑफ परफेक्शन मच बियॉन्ड व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ इन हिमसेल्फ। इसका मतलब आइडियाज इन मैन, ये इन्फ्रेंस निकली, आइडियाज इज इन मैन आर नॉट डिपेंडेंट टोटली ऑन, देखते चलो मैं क्या लिख रही हूँ, ऑन एक्सपीरियंस। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, यही निकाल रही हूँ इन्फ्रेंसेस आपके सामने, कुछ भी पहले से नहीं पढ़ के आती, सिर्फ पैराग्राफ के 3 पार्ट करके आई हूँ तुम्हारे सामने सीआर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए। फिर कहूंगी चाहती तो ये टाइप करके आ सकती थी, राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन तब तुम्हें मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस ना होता कि मैम तो पहले से लेके आई है, इसलिए मैम वही करेंगी जो बच्चे को क्लैट में करना है। ठीक है, तो इस लाइन से क्या समझा मैंने कि क्योंकि इसने लिखा है कि मच बियॉन्ड व्हाट ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ इन हिमसेल्फ, यानी उसने खुद जो आप बीती नहीं की है उसके बारे में भी वो सोचने के काबिल है, ये ताकत है आदमी की। एंड इज नॉट लिमिटेड इन हिज कॉन्सेप्शन ऑफ विजडम, कंसेप्शन ऑफ विजडम, इन हिज थिंकिंग ऑफ विजडम एंड वर्च्यू, यानी गुड थिंग्स में भी, गुड जेन्युइन पायस थिंग्स, थिंग्स विच आर द मोस्ट सेक्रेड, उसमें भी आदमी सोचने की काबिलियत रखता है, even if he is not good. Okay, he can easily exalt his thinking and concepts and conceive or give birth to a degree of knowledge which when compared to his own will make the latter appear very hateful, contemptible. Contemptible means जिसको आप नफरत करने लगे, he will start hating his own nature, यानी कि आदमी में वो काबिलियत है कि वो अपने वर्च्यूज को जो उसमें शायद हो और शायद ना हो, उनको इस तरह से इंक्रीज करेगा, इस तरह से हायर लेवल पे ले जाएगा कि उसका अपना मैन्स इनहेरेंट नेचर उसे कंटेम्प्टेबल और वर्थ हेटिंग लगने लगे. So all these are the faculties, the excellencies of man, and it will cause a difference between that and the sagacity of animals in our manner to disappear and vanish. Now when man starts analyzing himself and he finds that he is much worse than those beings of perfect wisdom, then he will realize that the sagacious nature or the wise nature or the prudence of animals, that this difference between beings of perfect wisdom is much more than the difference in knowledge of men and animals. तो ये जो डिस्टेंस पॉइंट है ये छोटा है और तब उसे रियलाइज होगा कि ये डिस्टेंस पॉइंट कितना बड़ा है. Now this being a point in which all the world is agreed that human understanding falls infinitely short of perfect wisdom, यानी इसमें पूरी दुनिया अग्री कर चुकी है that human understanding falls much short of perfect wisdom. It is proper we should know when this comparison takes place that we may not fight where there is no real difference in our sentiments. Man falls much more short of perfect wisdom, even of his own ideas of perfect wisdom, than animals do of man. Finally we have a second conclusion. Very nice article, very nice, well written असेसमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर. कहता है जब आप अपने आप को बीइंग्स ऑफ परफेक्ट विजडम से कंपेयर करेंगे उस समय आप पाएंगे कि आदमी का इनहेरेंट नेचर उस परफेक्शन से कितना छोटा है. और ये जो दूरी है बिटवीन, फिर से दिखा देती हूँ, बिटवीन मैन ऑफ परफेक्ट बीइंग, बिटवीन बीइंग्स ऑफ परफेक्ट विजडम. तो ये देखो बीइंग्स ऑफ परफेक्ट विजडम यहाँ आ गए और ये जो दूरी है मैन की इससे, ये इस दूरी से जो मैन और एनिमल्स के बीच में है उस दूरी से कितनी ज्यादा है, मच मोर शॉर्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दूरी मच मोर शॉर्ट है इवन ऑफ हिज ओन आइडियाज. मैन के अपने आइडियाज ऑफ परफेक्ट विजडम से भी जो दूरी है काफी शॉर्ट है देन एनिमल्स डू ऑफ मैन. यानी एनिमल्स और मैन की जो दूरी अगर x है तो ये मेनी टाइम्स x है. All right, so this is a smiley for you. Hopefully आपकी स्माइल ज़रूर बरकरार रही होगी और आपको अब यकीन हो रहा होगा कि यार सीआर इतनी भी बुरी नहीं है, है ना. खुद डील करना सीआर से मुझे समझ में आता है कितना ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है और इसलिए मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए. तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो. हर वीक हम एक वीडियो अपलोड करते हैं संडे को. तो नेक्स्ट वीक आई विल कंटिन्यू विथ वन ऑफ फिलोसॉफी एंड वन ऑफ प्रोबेबली साइंस या क्वांटम फिजिक्स, कुछ ऐसा उठाएंगे. होपफुली आपने रीजनिंग को सही पकड़ा होगा और आप साथ नहीं छोड़ेंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा मीन से शुरुआत करती हूँ अपने वीडियो की बिकॉज आई लव मीम्स. कि इट्स नॉट दैट
I'm so smart. It's just that I stay with my problems longer. So, hoping the same for you, and we'll meet next week. Till then, bye bye, take care.